Yes? Section 1 is philosophical, definitely. You can't change that. Every year you have section A as an philosophical essays. So किसकी philosophy से कुछ relate कर पा रहे हो? Sorry, Bhagavad Gita? Very good. Yes? What do you say? First essay is the process of self-discovery has now been technologically outsourced. Okay. So, देख बगा बेस फिलोसॉफिकली ये तो आपको पता चल गया, करेक्ट है. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इन दिस एसे एंड व्हाई दिस एसे. द इंपॉर्टेंट वर्ड इज technology outsource, all right, and process of self discovery. These are two interrelated things, correct? The process of self discovery, which has a philosophical touch, and technologically outsourced, it is current related issues. All right, so what you are going to write in this? कुछ तो लिखेंगे, बिना लिखे थोड़ी आ सकते हो वापस आप. It's all about to define ourselves as a human being, and at the same time we need to connect the dots to the current developments which is happening from last 20 years in India, and the current scenario as artificial intelligence and all these things, and the dependency of ourselves on the technology and how it is impacting our thought process, and how we are going through that era, and we also need to connect that to the future as well. So it's a mix of technology as well as the spirituality part. Okay. The role of social media which it plays in discovery. Yes, definitely. That should be a one point. Role of social media. Have you been gone through that Facebook page? How you are, correct? The game part. You're clicking on that thing and it's writing something, and you're feeling some sort of pleasedness. You feel pleased, correct? So what is that? That is actually a self-discovery, right? And done by technology. For example, I'll just give one example of that. Correct? What is that? That is your discovery of yourself, and it is done by technology only. Am I right? So now the question is, why this essay in this year? Okay, essay तो आप लिख लोगे बाद में, कोई issue नहीं, उसको हम evaluate भी करेंगे. Why this year? Pandemic has actually Definitely. The impact of pandemic. Correct? Because the thing which is most hampered was yourself. Correct? Those who are doing businesses, those who are working, okay, work culture completely change हो गया, business का culture completely change हो गया. You never thought of doing of virtual lectures, virtual classroom. Okay, metaverse के बारे में हम बात करते हैं, correct? जब last time we have discussed these things, correct? What is metaverse and why it is important in today's scenario? Even Facebook has changed its name, correct? क्या था चेंज नेम? मेटा, करेक्ट है. तो क्या है? सो बेसिकली वही आपको इसमें पूरा लिखना है. आगे हम इसको देखेंगे. सेकेंड ऐसे आपको दिया गया है, क्या है? योर परसेप्शन ऑफ मी इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ यू, माई रिएक्शन टू यू इज एन अवेयरनेस ऑफ मी. काफ़ी फिलोसॉफिकल इसमें, मतलब एक्चुअली ये जो एसेस होते हैं ना, इसको आप काफ़ी ओपन माइंडेड लिख सकते हो. आप जितना थॉट प्रोसेस आपका बड़ा रख सकते हो, उस हिसाब से आप इसको लिख सकते हो. करेक्ट है? क्या लिखेंगे आप इसके बारे में? मुझे बस थीम बता दीजिए कि ये ऐसे किस थीम पे बेस्ड है. वन वर्ड, एक वर्ड में बताएंगे आप. सर हम कैसे लोगों को जज करते हैं, लोग हमको कैसे जज करते हैं, हम उसको कैसे रिएक्ट करते हैं, वन ऑफ द पॉइंट. हाँ, एंड हम जब भी किसी और के लिए रिएक्ट करते हैं तो वो बताता है कि हम क्या है. इंटॉलरेंस. can we say discrimination, racial discrimination, caste discrimination? There are n number of types of discriminations we are practicing. Okay, and most of times if you relate this thing, okay, you have to go to
Philadelphia society, Philadelphia city. Okay, the incident of Starbucks, if you go on internet you can read it about that. Okay, the incident happened at Starbucks and that time this phrase suits there. करेक्ट है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे. सवाल क्या है कि ये जो एसेस होते हैं यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लिखने के लिए बहुत सारी चीजें, बट यू कैनॉट पुट इट इन योर वर्ड्स, क्योंकि आपके पास जो कंटेंट है आज के तारीख में, इवन आई विल कम टू द सोशियोलॉजी एज वेल. ओके, बिकॉज इट्स माई प्रॉमिस एवरी ईयर देर विल बी 2 essays फ्रॉम सोशियोलॉजी. One is from section A, second is from section B. Correct? So we come to that point as well, right? Come to the third point. Philosophy of wantlessness is utopian, while materialism is chimera. That means physicality. Yes. So this also the same sort of philosophical essay. Okay. And now comes to the point of sociology. Okay. The real is rational and the rational is real. Whose statement is this? Yes, Saloni. किसका स्टेटमेंट है ये? इवन मैंने लिख के दिया है आपको, आप बोल भी नहीं सकते कि नहीं लिखा है हमने, क्योंकि जब मैं बताऊंगा तब आप बोलेंगे कि हाँ 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 सर लिखा हुआ है. हाँ यस, मैंने वही कहा है कि जो चीज़ें आपके पास है बस आपको उस वक्त कनेक्ट करते आने चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. ओके, द रियल इज रैशनल एंड द रैशनल इज रियल. बाकी लोगों का नहीं हुआ है, जो पुराने लोग हैं मैंने उनसे सवाल पूछा था, क्योंकि उनका वो पॉइंट हो चुका है. ओके, सो रैशनलिटी के बारे में किसने बात की है, रियल वर्ल्ड के बारे में किसने बात की है ना? यस, दिस इज स्टेटमेंट ऑफ हेगेल. किसका स्टेटमेंट है? हेगेल का. तो एक बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या लिखना चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं. बिकॉज ही बिलीव्स इन गॉड, डिविनिटी अटमोस्ट था उनके लिए. करेक्ट है. सो व्हाट इज रियल फॉर हिम? गॉड इज रियल. एक्चुअली जब उन्होंने ये चीज कह दी कि गॉड इज रियल, तो उनके अपोजिट्स कौन बन गए? सॉरी, मार्क्सिस्ट. करेक्ट, बिकॉज मार्क्सिस्ट डोंट बिलीव दैट गॉड्स एग्जिस्टेंस. ओके, एज पर देम दे आर अथिस्ट. करेक्ट है. सो दे आर देयर अपोजर्स. ओके, कुछ टाइम के बाद ही इज टॉकिंग अबाउट रैशनैलिटी. जब वो रैशनैलिटी की बात करते हैं तो उस वक्त जो पोस्ट मॉडर्निस्ट है इन सोशियोलॉजी, जो पोस्ट मॉडर्निस्ट है वो भी उनके अपोजर्स बन जाते हैं. करेक्ट है. सो यू हैव टू जस्ट टेक हेगेल एंड यू हैव टू एक्सप्लेन हिम, नथिंग एल्स. इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन फ्रॉम सोशियोलॉजी. स्ट्रेट फॉरवर्ड. अगर आप पिछले पन्ने उठा के पलटेंगे तब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी. क्लियर है? इसके सारे एसेस हम लिखने वाले, डेफिनेटली हम सारे एसेस लिखने वाले, बट इट्स अप टू यू कि कौन कितने जल्दी लिख के इवेल्युएट करके लेता है. बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू फोर्स यू, क्योंकि आपको फोर्स करके मेरा काम बढ़ने वाला है. व्हाई शुड आई फोर्स यू? सेक्शन बी. ऑलराइट, सेक्शन बी इज फर्स्ट एसे इज व्हाट? Hand that rocks the cradle rules the world. हाँ, अभी हमने रिसेंट टाइम में कुछ तो वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत सारी चीजें लिखी ना हमने. इट्स कंप्लीटली वुमेन एम्पावरमेंट टॉपिक. करेक्ट है. उसका डायरेक्टली जो बेसिस है वो कहाँ पे जाता है? वुमेन एम्पावरमेंट पे. करेक्ट है. वो तो उन्होंने बस एक जो फ्रेज था वो यूज कर लिया वहाँ पे, अदरवाइज यू हैव टू राइट द सेम थिंग. अभी किसी ने मेरे से ऐसे भी चेक करवा लिया ना, वुमेन पे लिखा हुआ था. आई थॉट अनुराधा. ऑलराइट, व्हाट इज रिसर्च बट अ ब्लाइंड डेट विथ नॉलेज? शायद मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपको ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस की हुई है हमने कि रिसर्च क्या होता है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हाइपोथेसिस, ओके, व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस हाइपोथेसिस, एट दैट टाइम आई विल टेल यू इज जस्ट अ sort of blind knowledge we are going to discover, because we don't know what we are going to discover. We have to just assume. Correct? We have to just assume, and what that assumptions we have termed it as hypothesis. Correct? So ये काफ़ी अच्छा ऐसे था, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते थे. इसको तो हमने बहुत बार बात भी की है. हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज ट्रेजेडी एंड सेकेंड एज फार्स. करेक्ट है. सो इवन जब टॉपिक 1 हमने पढ़ा था,
जब हमने कंपैरिजन किया था हिस्ट्री और सोशोलॉजी के बीच में, करेक्ट है, आप नहीं थे, आप लोगों का नहीं हुआ है, आप हाँ मत भूलिएगा, ठीक है, ओके, आपने पढ़ा हुआ है, इट्स ओके, जिनका हुआ है मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, राइट। सो लिखने के लिए कोई बहुत सारे इंसिडेंट आप ले सकते हो जो आज के तारीख में हुए थे। मैं हमेशा कंपेयर करता हूँ गांधी जी के काल, इंदिरा गांधी के काल में क्या हुआ था, मोदी जी के काल में क्या हो रहा है, am I right? Okay, so you have to write it down. Then there are better practices to best practices. Okay, ऐसे अगर है तो इसको छोड़ दीजिएगा, इसको हाथ मत डालिए। आप लोगों को अगर ऑप्शन होता तो आप लोग इसमें से कौन से एसेस लिखते? दिस फर्स्ट, सब लोग फर्स्ट लिखेंगे, करेक्ट है ना। सो मैंने पहले भी एक बार डिस्कशन में कहा था, योर सिलेक्शन ऑफ एसे, करेक्ट है, आपका एसे का सिलेक्शन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको एसे में कितना स्कोर मिलेगा वो। इवन आई टेल यू व्हेन आई एम गिविंग मेंस, व्हाट अ मिस्टेक आई हैव डन, आई नो ऑल द 8 टॉपिक्स, बट द टॉपिक्स विच आई हैव चोजन बोथ हैव द सेम कंटेंट। एक में इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट था, दूसरे में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म था, बिकॉज रिफ्लेक्शन ऑफ कंटेंट तो सेम हो गया ना दोनों ऐसे में, so that's why I'm not going to score good marks in that. So selection of essay is very important, and when you are writing common topics, it means the paper checker have already if he checks 100 papers and your number is 101, right? So you have content of 100 papers. So your paper will be evaluated on the basis of content of all the 100 papers, correct? And plus his own knowledge. करेक्ट है। सो सिलेक्शन देखिए ना, अभी आप सब लोगों को मैंने क्वेश्चन पूछा, ऑलमोस्ट 95% लोगों ने, 98% लोगों ने फर्स्ट वाला ऑप्शन दिया। व्हेन द पेपर चेकर विल सी समवन हैज रिटन दिस सॉर्ट ऑफ एसे, किसी ने ये लिखा है, किसी ने ये लिखा है, सो वी विल हैव मोर इंटरेस्ट इन दैट, बिकॉज वो भी तो पढ़ के परेशान, बस उसको इंटरेस्ट आए इसलिए आप टॉपिक खराब मतलब दूसरा चूज कर रहे हो, ऐसा ज़रूरी नहीं। आपके पास कंटेंट भी होना चाहिए, आपके पास कंटेंट भी होना चाहिए, ठीक है। अभी आप लोग फ्रेशर्स हो, करेक्ट है, बहुत ज़्यादा नॉलेज या फिर बहुत ज़्यादा कंटेंट आप लोगों के पास नहीं है, तो आपको लग रहा होगा कि ये सारे टॉपिक्स बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं, क्या लिखे इसमें, क्या नहीं लिखे, क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा है। बट वंस यू ये कंप्लीट कर लोगे आप, 1 साल का जो पढ़ाई होता है आपका, सो यू विल राइट इट इन एनी टॉपिक, आप कोई भी टॉपिक में लिख सकते हो। बट रिमेंबर वन थिंग, ओके, जब आप फिलोसॉफिकल ऐसे लिखते हो तो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट फिलोसॉफी। फिलोसॉफिकल ऐसे में जीएस का कंटेंट मत लिख दीजिएगा, करेक्ट है। अगर आप जीएस का कंटेंट लिखने लग जाओगे तो दिक्कत क्या हो जाएगी, इट विल बिकम आंसर ऑफ जीएस पेपर, बिकॉज ऐसे हैज इट्स ओन डिमांड, करेक्ट है। एंड ऐसे मीन्स नॉट जीएस। बहुत सारे लोगों का वही थिंकिंग होता है कि हमने जीएस पढ़ लिया है तो हमें ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो कि गलत चीज है, करेक्ट है। हाँ, यू विल हैव एडेड एडवांटेज ऑफ सोशियोलॉजी in this particular paper. Definitely you have advantage of this particular paper of sociology optional in your essay paper, but remember you have to be interconnect all the topics with your syllabus. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप सिलेबस अगर अच्छे से आप लिखते हो, जिसको सिलेबस याद है ना, वो ये सारे एसेस में से ऐसे में अगर सिलेबस के आप 10-12 पॉइंट भी डाल देते हो, करेक्ट है, यू विल हैव गुड मार्क्स। बट आप लोगों का दिक्कत क्या है, आप लोगों को सिलेबस ही पता नहीं है कि क्या लिखना है कोई अभी बता सकता है मुझे? सर, आई नो ऑल द 4 GS papers syllabus, we have completely aware about that, or we know everything about sociology optional syllabus. सी कभी भी ध्यान में रखिएगा, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, करेक्ट है क्या, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको बस सिलेबस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, और वो टॉपिक कौन से सिलेबस से बिलोंग करता है, एटलीस्ट उस टॉपिक के कंटेंट आप वहां पे लिख सकते हो, सो यू विल गेट अ गुड मार्क्स, डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड मार्क्स।
बट अगर वो भी नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको, पॉइंट्स क्या लिखे और क्या नहीं लिखे। इज दैट क्लियर? पक्का सब लोगों को? कोई टेंशन है? आप लोगों ने टेंशन लिया तो कैसे होगा, है ना, बहुत बड़ी चीज़ होती है, कोई बात नहीं। ओके सो कौन सा ऐसे लिखेंगे अभी? अभी मतलब अभी नहीं लिखना है, आराम से लिखिएगा घर पे, बट टाइम लगा के, है ना, जो टाइम फ्रेम है 1 hour 30 minutes पर ऐसे, ओके उतने में आपको लिखना है। 1000 to 1200 वर्ड्स वर्ड लिमिट होना चाहिए। ओके सो कौन सा लिखेंगे? See, you just imagine this is your UPSC mains exam. See, those who have given this exam, they don't aware about this topic, ना, they also don't know anything. करेक्ट है, बहुत सारे लोग तो रोते होंगे, कसम से बोल रहा हूँ, आप फोन करके पूछ लीजिएगा जो आपके फ्रेंड है या फिर कोई सर्कल में है, बिकॉज टुडे दिस ईयर टॉपिक्स आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन फिलोसॉफी फर्स्ट एंड सेकेंडली सोशियोलॉजी। बाकी इन दोनों को छोड़ के अगर किसी का कोई ऑप्शनल पेपर है तो मतलब गई भैंस पानी में बोलते हैं ना हम, वो वाला सीन है। पॉल साइंस, एंथ्रो, हिस्ट्री, जॉग, वो तो मतलब छोड़, मैथमेटिक्स वाला तो ये दुनिया के बाहर का है, बोले उनका कोई संबंध नहीं आता है इससे, ये छोड़ दीजिएगा आप इसको, नॉट नेसेसिटी। यू जस्ट ट्राई टू राइट योर सेल्फ, करेक्ट है ना, आप समझेगा कि ये आपका पेपर है तो उस वक्त आप क्या दिमाग लगाएंगे, है ना, ऐसे तो कोई नहीं कि जिसने अभी कल परसों पढ़ाई शुरू की है, करेक्ट है ना, 6 महीने साल भर सबको हो गया पढ़ के, मैं राइट। सो आप तो लिख ही सकते हो कुछ भी, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इम्पोर्टेंट चीज़, आप पेपर रीडिंग कर रहे हो डेली, सो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ये मतलब ये एसेज देखने में। अभी मैं कल इसको बताऊंगा आपको कि हिंदू के कौन से एडिटोरियल में से ये आएंगे, आए हुए ये से ऑलरेडी, ठीक है। इसका डिस्कशन हम कल मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम करेंगे कि कौन से दिन का कौन सा न्यूज़पेपर था जिससे ये टॉपिक उठाया गया है। तो उसके बगैर आपको भरोसा नहीं बैठेगा ना कि हमें पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए हिंदू, राइट। सो बताऊंगा, डोंट वरी।